गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से एक बार मिल रहे हैं 1 महीने के बाद। दिस इज ऑन बिहाफ ऑफ प्लस अप्रोच फाउंडेशन। आई वेलकम यू ऑल इन द इवनिंग on positivity for sustainable success. My name is Dr. Ashutosh Karnatak. I am mentor and curator of this foundation, and we have today audience not only national but international. Some of our people are there. They have joined here. I am thankful to 3 panelists today who have come here, Mr. Shahi, Mr. Agnihotri, and Dr. Ashu. And I am thankful to PF team headed by Sri R.C. Gupta ji, the chairman of the board. Shika Sharma, she's our joint secretary. VK Singh, our media coordinator, and all others who have worked on the background. Thankful to Ajit. This time we have given a project we have given to Mr. Ajit, who is working with us last 4-5 years as a project manager for this program, who has done good, and lot many people who have supported us. We are really thankful to you. Our objective is to guide everyone to be successful in life. We want that everybody should have it's a birthright of everyone to be successful. So we want, from the Plus Approach Foundation, we want that everybody should be successful, and success is our mission. Positivity and success is our mission, and nobody should be without any success, because success is the ultimate aim. So positivity is a critical ingredient. It's a critical ingredient which is required to be successful in life. So next 10 years, in my opinion, next 10 years, they are going to be very challenging in the world itself. And for India, we are going ahead, but there are many circumstances which are choking us, our external environment, our internal environment, they are not allowing us to move ahead. So only one remedy, only one panacea, it is how you think. What is your mindset, how you think. People ask me, what is positivity? Why you speak about the positivity? I tell them that positivity is nothing, but it is affirmative state of mind. It is affirmative state of your mind when you think to cross the different barrier, whatever barrier come to your life, you need to cross it by your courage, by your conviction, by your passion. You need to cross it. That is a positivity. It is just a positive bias of your mind. It takes you from cannot do to can do, because people say I cannot do it, but positivity takes you cannot to can do approach. So that is the thing what positivity is. It always helps to look for a solution, because every day we find a different problem. It is not that life is very smooth. It is not like that. But we need to find every day, if there is some issue, we need to find a solution instead of saying that why problem has come to us. And the positive person, he is always hopeful and optimistic. So there are some of the criteria which we have developed. What positivity? Positivity, it is nothing but your affirmative mind. Probability enhances. Why positivity? What it does for the success? It enhances your probability to succeed in life. So it is a success compass which directs you and your efforts in the direction of goal. So we need to transform our mindset to our affirmative goal. Always think that for possibilities, options, and solutions. We need to move forward. We cannot sit idle after Corona, this pandemic. We cannot sit idle. A new normal will be coming. Again, we have to move ahead. But how? And it's a time of opportunity, introspection, and learning. It's a time of opportunity. Many opportunities are opening. We need to introspect what we have to do, what are our strengths, what are our weaknesses, how to take forward now onwards, and learning. We need to capture learning. So during this difficult time, how to train your brain to respond affirmative mode. That is the idea of Plus Approach Foundation, that we are moving ahead. So together today we have to be successful, and today we have organized a webinar through our foundation. Prime objective is dissemination of positivity. You may visit our website, namely plusapproach.co.in. So with this preamble, I am starting today's program, that today is the birthday of Gandhi ji and Shastri ji. Shastri ji has given us a slogan, Jai Jawan, Jai Kisan. So we remember both, and they are the towering leaders who has given us lot of learning to us, but we need to follow that. So today we say, I feel it is application of Gandhiji's or Shastri's teaching, how we can apply in day-to-day life. It is not only self, but as an organization at national level.
if around 4 or 6 or 7 habits of Gandhiji we can use in our day-to-day life, it will be good for us. So we need to find the format of the program is I'll ask 3 questions from each speaker. We'll hear them after end of the question round to the panelists. Questions are invited from audience. Audience otherwise can also have the chit chat view, and it will help you to maintain your name as a speaker to whom the question has been posed. PF will be giving you a certificate of positivity ambassador. From today, whosoever has joined here, he will disseminate positivity. What he will do? Only 2 or 3 things, not more. I am not asking many things from him. He has to think, number 1, yes, I can. You have got tremendous capabilities within you, but you are not exploring it. They all are dormant. You are barriered by fear and failures. No. Failure is one of the stages to success. Success is ultimate. Nobody can stop you. So you have to be positive from today. Number 1, you have to have self-belief on you. Number 2, whenever a barrier will come, just cross it. Just cross it with your courage and conviction. So 2 things I am giving. Further, all the panelists and audience may submit their positive quotes. At the end, whatever you want to write, we'll try to put it on our website. And your responsibility will be positive, and this from your side. So now I'll start a brief presentation about Plus Approach Foundation, what they are doing. You must know what we are doing, where we have reached. It's a brief presentation I'm giving. So this is our foundation name, Plus Approach Foundation, New India, Positive India. This is our mission. We are established in 2011 with a mission that Har Haath Ko Rozgar, Har Man Mein Ek Hi Vichar. Everyone should have employment, and every mind should have only one thing in mind: yes, I can, yes, you can, yes, we can. And this you can chant and try it when you are getting early in the morning and sleeping. When you are half asleep, just think, yes, you can. So this is this, and poor student transformation life and positive behavior and its impact, some research we are going to do. So this is our vision: to develop positive ecosystem, thinking, progress, prosperity, and peace. And this is our mission. And we are doing in the 4 areas, and we have tried to align ourselves with the sustainability goal of United Nations. The journey begins is May 9, 2011. These are some of the transformation which we have done. So last 3 months activities, they are Sustainable Village Unnati, where I am going to thank our Mr. Bhatt, Harish Bhatt, who has given us this idea, and Ravi Shankar, who has given us the idea of Positive Village Development Center. And there are levels, how we are going to do this: level 1, level 2, level 3, level 4. Level 1 is no poverty, zero hunger, shelter. Level 2, level 3, and level. We will develop these villages. We will make these villages a sustainable village. And these centers are remedial school, swing center, where we have trained around 60-64 people, digital awareness, and we have repaired one house. This house we have repaired. This was earlier, now it is like this. So like this, we are going to develop that village. And we have talked with the district magistrate Almora for this. Then Prerna Pustakalaya, there are 10 inspiration libraries where good books, where I have sent the book of Dr. Arshu also about Mahatma Gandhi. Positive Village Development Center, implementation of positive book of PAF in the school curriculum, and some annual programs. This is the curriculum of that. This success series we are starting: Ascend Your Everest, Yes, You Can. So aim is to have a success academy, student, professional organizations, they can do.
So 2 webinar we have done. Last we have done 21st August. This we have done 2nd October. Other activities: positive quotient, competition quotient, success quotient, and academic research, vaccine to control failures. That we are trying to find out what are the reasons and what can be the remedy. And a positive plow, lighter and reasonable plow, and developing lighter and affordable houses for flood prone and hilly regions. And we take out one newsletter called Plus Magazine. And today we are launching this Save Food, Save Time, Save Money. This we are launching today, 2nd October 2020, in presence of you all, for the public awareness that we need to save food, we need to save time, and we need to save money. So this is a brief presentation from Plus Approach Foundation. So now, so launch of promotion today. Hello, am I clear? Yeah. Okay, good. So this is a brief presentation. Mr. Agnihotri also joined. We welcome you, sir, here, and we are really thankful, despite a busy time, you have come here. So I'm just introducing that what Plus Approach Foundation was doing, and about one slogan we have today launched, that is called Save Food, Save Time, and Save Money. And in fact, one of the story which I have read from Dr. Arshu book only about the saving. Once this one story that is called, इलाहाबाद में 6 यात्राओं के दौरान बापू 5 बार आनंद भवन में ही ठहरे थे. एक बार वहां भोजन के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके हाथ धुला रहे थे, इट इज अबाउट द सेविंग ऑफ वाटर. पंडित जवाहरलाल नेहरू जब उनके हाथ धुला रहे थे, तब किसी ने पीछे से गांधी जी को पुकारा और उन्हें संबोधित करके कुछ कहने लगा. गांधी जी ने पीछे मुड़ के देखा भी और उस सज्जन से बातें भी करने लगे. इसी बीच नेहरू जी उनके हाथों में पानी गिराते रहे. जब तक बापू की बातचीत चलती रही, नेहरू जी लगातार उनके हाथों में पानी उड़ेलते रहे. अपनी बात खत्म करके महात्मा ने कहा, जवाहरलाल, तुम पानी भी बर्बाद किया, तुमने पानी भी बर्बाद किया. देखो, मेरे हाथ भी ठीक ढंग से नहीं धुल पाए. नेहरू जी ने जवाब दिया, गांधी जी, आप कतई परेशान न हो. यह वर्धा नहीं, इलाहाबाद है, और यहाँ गंगा और यमुना दोनों बहती हैं. जरूर, बाबूजी ने कहा, जरूर जवाहरलाल, पर ये गंगा यमुना आपके और मेरे लिए नहीं है, यह पूरे विश्व के लिए है, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों के लिए भी है. गांधी जी का उत्तर था. ऐसी थी गांधी जी की सोच. So this was the thinking of Gandhi ji about saving, that he doesn't want it that the water should be wasted. In the same way, we also want that food should be saved, time should be saved. I'll tell you about that story about Mr. Gandhi ji about time later on. So that should be saved, and of course, it's a time when the pandemic has come. Next 2 years, our economy, it is going to improve after some time. So we need to save money, a simple amount of money. Recently, I will tell you a story. We have recharged our Tata Sky thing, and earlier we used to pay around 12,000 rupees per year. But my son has told me, Papa, if you are not seeing those channels, why you should waste money? So we could save at least 1,000 or 2,000 rupees per year after doing this correction. So we should save money. We should not waste our money at all. It's a hard-earned money. We should not waste. That's why we are promoting this thing, that we should save money, save time, and save food. So now let us start our interactive session today, that we are having Gandhi ji and positivity. And this topic I have selected because I wanted this when I was in GAIL India Limited earlier. We wanted to do this last year only, but somehow it couldn't be done. We thought, and I'm very passionate about Gandhi ji, and I am passionate about many positive things which will help us. So it is based on ground reality and cardinal rules we have to develop. Today our panelists are Mr. S.K. Sahi. I will give his introduction. Mr. Sahi is a director of CSRL, who executes CSRL Super 30 program across 22 centers in India, from Arunachal Pradesh to Kashmir. In last 11 years, they have transformed the lives of more than 4,000 unprivileged children by getting them in IIT and NITs. More than 500 students are already well placed in their jobs. Famous
world famous institute like Harvard Business School, Duke University, IIM Indore have done the case study on CSRL. Mr. Sai is well read on leadership and he has done extensive study on Mahatma Gandhi. He has also written a book on Gandhi Mission Leadership, which was launched by Dr. Manmohan Singh in 2002. He has created a diary on Gandhiji, which has distributed 10 years ago to the members of parliament. So a clap, a silent clap for him, that for Mr. Sai. The next is Mr. Vinod Agnihotri ji. He is known to me since long. He is from the Kanpur, where my college SVT. I am graduated from SVT, and many of the students, they are from SVT today. SVT is a very good college, 1921, and it has given us a teaching. In fact, we should not forget our school, that who has taught you to be independent. So that school, the SVT, has got many good qualities which SVT has given me, and today I have reached to this stage. So I'll give his introduction that 3 decades of journalism, he is in the Patrakarita department. 3 decades he has have previously Nai Dunia managing director. Now in he is working with Amar Ujala, the Hindi paper, which is which has got around 60-70% share in India. He is Nispaksh and Swatantra Patrakarita. He promotes that it should be independent and impartial. So when he got in 2016 he got the Shalikar Saman, and he told that स्वतंत्रता संग्राम से जो विचारधारा निकली है, जिसकी पुष्टि भारत के संविधान ने की है, मैं उसका पालन करता हूँ। यह विचारधारा धर्म निरपेक्षता की और समरसता की पक्षधर है। लेकिन जब भी मैं पत्रकारिता करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि यह विचारधारा मेरे लेखन में हावी न होने पाए और मैं तटस्थ रहूं। ऐसे हैं हमारे पैनलिस्ट मिस्टर विनोद अग्निहोत्री जी। एक क्लैप फॉर हिम, एक क्लैप फॉर हिम। नाउ आई विल इंट्रोड्यूस डॉक्टर आशु. How the Dr. Arshu has came in touch with me is a story now. I have started reading about Mahatma Gandhi. I have got good books from Prabhat Prakashan, and one of the books which I am showing here, it is written by him. So when I just going through this and I am trying to select the panelist, I thought that I should invite him. I just gone to the back page and I have seen his email ID and phone number. And in Kochi, Gale India office is there. So I told our old colleagues that please be in touch with him. So we invited him here. So we have Dr. Arshu, we are really again thankful to you that you have came here. You have really, it's a blessing to us. Dr. Arshu is 1950 born from Calicut, Kerala. इनका शिक्षा हिंदी में उच्च, from the Kerala he has done Hindi उच्च शिक्षा कालीकट विश्वविद्यालय, and he has done some research and पत्रकारिता अनुवाद में डिप्लोमा किया, हिंदी में अध्यापन किया, और इन्होंने काफी किताबें लिखी, साहित्य अनुवाद, संसार और संवेदना, स्वतंत्र हिंदी उपन्यास, मलयालम साहित्य, and many good books. And he has got many awards also. भारत सरकार, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि प्रदेशों के अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों से राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित, जापान के 4 विश्वविद्यालयों में भारतीय साहित्य पर व्याख्यान 2002 he has given, विश्व भारती हिंदी पुरस्कार, and हिंदी विभाग केंद्रीय विश्वविद्यालय केरल में सेवारत, and he is presently the visiting professor in University of Calicut, Gandhian Study and Research. So that's a great personality, Dr. Arshu. We are thankful to you that you are doing such a good job. Dadiji has told about the positivity. He told, keep your thoughts positive because your thought become your words. Keep your behavior positive because your behavior become your habits. Keep your words positive because your words become your behavior. Keep your behavior positive because your habits you become values. And keep your values positive because your values become your destiny. So by your values we can become your destiny. I was reading in his book, Ram Kumar Verma ji has said about Mahatma Gandhi ji, आकाश मंडल के उत्तर में एक नक्षत्र राशि का नाम सप्तऋषि मंडल है, और सप्तऋषि मंडल के जिस नक्षत्र की परिक्रमा करता है उसका नाम ध्रुव नक्षत्र है। मुझे ऐसा लगा कि देश के ही नहीं समस्त संस्कार की राजनीतिक दृष्टियां जिसकी परिक्रमा करती है उसका नाम महात्मा गांधी है। So that is the persona of Mahatma Gandhi, who is being seen, who is being rather followed by almost all the leaders of the world who are in the democratic country. They follow Mahatma Gandhi. So today we are starting our session now, a formal session with all the 3 panelists. I am going to ask the questions. So first question, it is common to all. Number 1, Sai ji, question to you.
कि आप आज के सब्जेक्ट को कैसे देखते हैं इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट, टुडेज टॉपिक, हाउ यू आर सीइंग इट। सही जी। हाँ, ऐसा कि महात्मा गांधी के जितने भी लीडरशिप के गुण हैं, जितने भी उनके विचार हैं, उसकी आवश्यकता और रेलेवेंस जितना आज है उतना शायद कभी नहीं रही है। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ, हाँ बोलिए। शायद कभी नहीं रही है। हाँ, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस तरह हाँ, के हाँ जी, हाँ जी, हाँ, प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उसमें बगैर थॉट रखे हुए हम कभी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए आज तो उनकी आवश्यकता पहले से भी अधिक बढ़ गई है। आज इंटीग्रिटी की जितनी जरूरत है हमारे समाज में, उतनी तो शायद पहले कभी नहीं थी। इसलिए जितने भी उनके विचार हैं, जो ट्रुथ पर हो, इंटीग्रिटी पर हो, सेवा पर हो, सोसाइटी के ऊपर में हो, विश्व के ऊपर में हो, इंडस्ट्री के ऊपर में हो, सब का रेलेवेंस आज अधिक है। गुड, ठीक है, गुड। तो विनोद जी, आपसे मैं यही सवाल आपसे कर रहा हूँ कि आज का टॉपिक कितना रेलेवेंट है। जैसा शाही जी ने कहा, मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा जी। कि महात्मा गांधी के जो विचार हैं और गांधी जो है उनकी प्रासंगिकता हमेशा रहे। मुझे लगता है कि जब तक ये मानव सृष्टि रहेगी तब तक महात्मा गांधी प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी के जो विचार हैं वो विचार कोई ऐसा नहीं है कि कोई से आरोपित विचार हो, वो हृदय की और व्यक्ति की आत्मा से निकले हुए विचार हैं। सत्य, अहिंसा, सकारात्मकता, आध्यात्मिकता, ये सारे जो उनके विचार हैं, ये व्यक्ति के जो नैसर्गिक गुण हैं वो हैं, और इसलिए उनकी प्रासंगिकता हमेशा रहेगी। अगर मौजूदा संदर्भ में देखें तो इस समय भारत और विश्व तमाम सारे संकटों से जूझ रहा है। कहीं हिंसा की समस्या है, सांप्रदायिक वैमनस्य की समस्या है, जातिवाद की समस्या है, क्षेत्रीय तनाव है, क्षेत्रीय संघर्ष है, आतंकवाद एक बड़ी समस्या है। इन सारे देशों के बीच में तमाम तनाव चल रहे हैं। युद्ध के मुहाने पर कई देश खड़े हुए हैं। अभी भारत और चीन के बारे में अगर देखें तो बिल्कुल युद्ध के मुहाने पर पहुंचे हुए हैं। तमाम सारे विश्व के कोने में जो है इस समय अशांति है। ऐसे में सबसे ज्यादा प्रासंगिक अगर किसी का विचार है तो वो महात्मा गांधी का विचार है, और इसीलिए महात्मा गांधी जो है वो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, और आज के संदर्भ में तो सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। इसलिए ये आज के विषय का चयन मुझे लगता है बहुत ही प्रासंगिक है। वेरी गुड, थैंक यू विनोद जी। डॉक्टर आशु, व्हाट आर योर ओपिनियन अबाउट इट, हाउ यू थिंक, कैसे सोचते हैं आप? नमस्कार अशोक कर्नाटक जी, शाही जी, विनोद अग्निहोत्री जी, फिर राजीव कुमार जी जो मुझे इधर मदद दे रहे हैं। इस प्लस अप्रोच फाउंडेशन का जो अभियान है वो अपने आप में अनोखा है, एकदम अपूर्व है। सकारात्मकता की जो सोच है उसको आज बल देने की जरूरत है। महात्मा गांधी कितने सकारात्मक सोच के समर्थक थे, उसका मूल्यांकन करते समय मेरा ये अनुमान है कि गांधी जी हमेशा सकारात्मक सोच के थे, लेकिन कहीं कहीं मैंने कुछ अनहोनी बातें सुनी है। उनके विचार में अहिंसा है, उनके विचार में अपरिग्रह है, उनके विचार में असहयोग है। इस आ वाले अक्षर को देखकर कुछ लोग बताते हैं कि ये असहयोग, अपरिग्रह और अहिंसा ये सब निषेध में है। असल में ये निषेध के नहीं है, ये असल में भलाई के या मूल्यबोध का जो सूर्योदय है उसको देखने के लिए वे तत्पर थे, और इसी की एक सीढ़ी के रूप में उन्होंने उसको इन शब्दों का प्रयोग किया था। असहयोग का अर्थ बुराई से असहयोग है, अहिंसा का अर्थ हिंसा से नाता न जोड़ना है, और अपरिग्रह का एक इतना संजय ज्यादा करने के, जब हम ज्यादा कमाई के बारे में सोचते हैं वो हमें मन को चैन नहीं मिलेगा। इसलिए गांधी जी की जो सोच है उस युग के उनके अनुयायियों की जो सोच है उस दायरा में कोई दरार नहीं है। सक्सेस मिलने के लिए भी आपने एक प्लस अप्रोच भी है और फाउंडेशन में आपने इसके लिए सकारात्मक जो सोच को अपने एक अनुशासन के रूप में विकसित करने का जो निर्णय लिया है वो हमारे देश के विकास के लिए, हमारी संस्कृति के विकास के लिए अत्यंत एक सहायक, अत्यंत सपोर्टिंग, उसको समर्थन देने वाला एक कदम है। इस प्रकार की हमें पहले सोच मिल जानी चाहिए, जहां हम एक्शन पहले नहीं होता है।
इंस्पिरेशन पहले होता है, इंस्पिरेशन के बाद एक्शन होता है। गांधी जी ने भी हमें इंस्पिरेशन की बात कही थी, उसके बाद ही वो एक्शन की ओर उन्मुख हो गए थे। इसलिए गांधी जी को निमित्त बनाते हुए सकारात्मकता के राजमार्ग की ओर हमारी संस्कृति को, हमारे समाज को ले चलने का ये जो अभियान है वो अपने आप में सराहनीय है। आपको हार्दिक बधाई है। गुड, थैंक यू डॉक्टर आर्चू। तो आप तीनों लोगों का मानना है कि आज के समय में भी गांधी जी के विचार है वो उतने ही रेलिवेंट है, और जैसे विनोद जी ने कहा ये तो सनातन विचार हमारे रहेंगे एंड वी शुड फॉलो इट। और ये पर्टिकुलरली जो हमारी यंगर जनरेशन आ रही है उसको उसमें से कुछ ना कुछ विचार को आगे लेके अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहिए, ताकि हमारे देश की उन्नति के लिए, देखिए हमारा देश बहुत बड़ा देश है, मैं इसका बड़ा इतना कायल हूँ बता नहीं सकता, बिकॉज इट हैज गॉट सो मेनी डाइवर्सिटी। हमने पाइपलाइन लगाई जब मैं गेल इंडिया में था, फ्रॉम काश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम गुजरात टू आसाम, एंड टोटल डाइवर्सिटी। बहुत एक ही चीज उनको बातती थी, वो ये था शायद ए प्रेम, ए लव अमंग ईच अदर, डिफरेंट लैंग्वेजेस। हम हर एक आदमी से मिलते थे, कैसे कैसे लोगों से मिले हम, मतलब टॉप सीएम से लेकर मंत्री तक हम लोग मिले। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि हर एक से बात करके जो एक आत्मीयता हम लोग के देश में है, दैट आत्मीयता हैज टू बी कंटिन्यूड, और वही शायद गांधी जी का मंत्र कहीं पर था। तो गांधी जी की दूसरी सवाल आने के पहले मैंने बहुत अच्छा, मेरे को समय के ऊपर एक बड़ी अच्छी स्टोरी मिली। ये मैं सब लोगों को बहुत ध्यान से, जितने भी पैनलिस्ट तो बहुत सीनियर लोग हैं, बट जितने पार्टिसिपेंट हैं प्लीज, हम एक गांधी के जूम मीटिंग पर वो फोन कर रहे हैं। हाँ, तो प्लीज लिसन टू इट वेरी केयरफुली। गांधी जी समय के सबसे बड़े सर्वेक्षक थे। उनका मिनट पर कार्यक्रम निर्धारित होता था। हमें निर्धारित समय से 10 मिनट का विलंब हो गया, और गांधी जी ने 9 बजे का दूसरा कार्यक्रम करने वाले थे, और एक आदमी उनकी सेवा कर रहा था। फिर भी उन्होंने हमें सामने बैठाया, श्रीमन नारायण से मेरा परिचय करा दिया कि मैं इलाहाबाद मैं प्रोफेसर हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ, और मैंने भी असहयोग आंदोलन में 1921 में स्कूल छोड़ दिया था। आश्चर्य हुआ कि गांधी जी को वह पुरानी स्मृति याद आ गई, और उन्होंने मेरे प्रोफेसर होने बधाई दी, लेकिन अपनी धोती से पट्टी से घड़ी निकालकर कहा, प्रोफेसर को 10 मिनट देर हो गई। बार बार जोड़ दिया, 10 मिनट की देर हो गई। और इस वाक्य के अंतिम स्वरों ने जो बात कही, उससे मुझे जीवन भर में एक अभूतपूर्व प्रेरणा प्राप्त हुई। उन्होंने कहा, जब प्रोफेसर को 10 मिनट देर होती है, सुनिए बहुत ध्यान से सुनिए, आज अगर आप कुछ भी यहाँ से लेके नहीं जा रहे हैं, ये अगले 3 मिनट या 2 मिनट यहाँ से जरूर लेके जाइएगा। उन्होंने कहा, जब प्रोफेसर को 10 मिनट देर होती है तो उसके विद्यार्थी को 10 घंटे देर होती है। जब विद्यार्थी को 10 घंटे देर होती है तो समाज को 10 महीने की देर होती है, और जब समाज को 10 महीने की देरी होती है तो देश 10 वर्ष पीछे चले जाता है। प्रोफेसर की 10 मिनट की देरी देश को 10 वर्ष पीछे ले जाती है। और उन्होंने मुझसे कहा, ये बात ठीक है ना प्रोफेसर साहब? मैं क्या उत्तर देता? मैंने कहा, बापू देर के लिए क्षमा चाहता हूँ, माँ की ममता ने मुझे देर करवा दी। उन्होंने तीव्र स्वर में कहा, माँ की ममता अपनी जगह है और समय की गति अपनी जगह है, दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। मेरी आंखों में जैसे मेरे कार्यकलापों के सारे व्यवधान दूर हो गए, और समय की तीक्ष्ण नोक अपनी प्रखरता के साथ सर्वदा के लिए मेरे हृदय में चुभ गई। मैंने बाबू से कहा, मैं अपने समय के एक एक क्षण का ध्यान रखूंगा, और इस बार आप मुझे माफ कर दें। तो ये बाबूजी की सोच थी, ये बाबूजी की सोच थी समय के बारे में। आप उनकी कहानी अगर आप पढ़ेंगे, आप बिल्कुल चकित हो जाएंगे कि कैसे हमारे बाबूजी थे। So that was the Bapu. Now I'll ask the second question from all of you. Second question is, please narrate one story of Gandhi ji which has impacted your life. साई जी, एक ऐसी स्टोरी बताया जिसने आपकी लाइफ में आपको चेंज किया। साई जी, हाँ बोल रहे हैं। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, आपने बड़ी अच्छी कहानी बताई है गांधी जी की। मैं चाहूंगा कि इसका रिकॉर्डेड वर्जन हमको भेज दें, क्योंकि मेरे यहाँ 60 फैकल्टी हैं और कुछ फैकल्टी हमेशा ही लेट आते हैं, उनको मैं ये कहानी भेजना चाहूंगा। इसको आप जरूर रिकॉर्ड करके मुझे भेजेंगे। हाँ, आपको मैं
एक एक मिनट में एक दो कहानी बताता हूँ जो उनके बचपन से रिलेटेड है। आपने टाइम पर कहा तो टाइम की मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि वो स्कूल पहले जाते थे तो शाम में जिम्नास्टिक का क्लास होता था, तो घर आते थे, पिता की सेवा करते थे और उसके बाद वो फिर शाम में जाते थे। एक बार क्या हुआ कि वो 10 मिनट लेट हो गए क्योंकि बादल के चलते वो घड़ी नहीं था उनके पास, तो वो स्कूल लेट पहुंचे और उनको 1 आने का फाइन कर दिया गया। तो इस बात का दुख उन्हें था कि उनकी सही बात को नहीं सुनेगी और 1 आना फाइन कर दिया गया, किंतु उन्होंने जो उस पर रिएक्शन किया, सिचुएशन क्या गई, जो हम रिएक्शन करते हैं उसी से हमारी पॉजिटिविटी और निगेटिविटी झलकती है। उन्होंने कहा कि अ मैन ऑफ ट्रुथ शुड आल्सो बी अ मैन ऑफ केयर, यानी कि अगर हम सच पर हैं तो मुझे मैन ऑफ केयर भी होना चाहिए और मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि मैं कभी लेट ना हूं। और उन्होंने टीचर का नाम जिमी था, उनको ये कहते हुए माफ कर दिया कि उनकी गलती नहीं, शायद मेरी ही है, और यही लाइन उन्होंने दोहराया कि अ मैन ऑफ ट्रुथ शुड आल्सो बी अ मैन ऑफ केयर। दूसरा उदाहरण मैं छोटा सा दे रहा हूँ जिसने काफी प्रभावित किया, जो बचपन से आप लोग सब कहानी जानते हैं कि जब वो स्कूल में थे, राजकोट अल्फ्रेड स्कूल में, तो एक इंस्पेक्टर गिल्स करके आए थे स्कूल में, जो उन्होंने बच्चों को 5 शब्द लिखने के लिए दिया था। उसमें एक शब्द था केटल। केटल का स्पेलिंग KETTLE होता है, किंतु गांधी जी ने KETLE लिखा था। तो जो टीचर गार्डिंग कर रहे थे उन्होंने देखा कि गांधी ने गलत स्पेलिंग लिखा है और मेरी बदनामी होगी इंस्पेक्टर में, तो उन्होंने उनके पैर में ठोकर मार के बार बार कहा कि स्पेलिंग को ठीक करो, स्पेलिंग को ठीक करो बगल से देखकर, किंतु गांधी जी ने वैसा नहीं किया। और इस कारण सभी बच्चे 5 में पास हुए थे, यही फेल किए थे, सिर्फ एक शब्द की स्पेलिंग थी और उसके चलते टीचर को भी बात सुनना पड़ा। किंतु उनका अंत में जो उन्होंने उसके बारे में लिखा, उन्होंने लिखा कि बट दिस नॉट डिमिनिश्ड माय रिस्पेक्ट फॉर माय टीचर बिकॉज टीचर वाज ट्राइंग टू डू समथिंग गुड फॉर मी सो दैट आई डोंट फेल। एंड वहां भी उन्होंने निगेटिविटी टीचर के प्रति नहीं आया और उन्होंने कहा कि मैं जिंदगी भर उसके बावजूद भी उस टीचर, उन्होंने कहा कि आई सपोज दैट अ टीचर इज देयर टू प्रिवेंट स्टीलिंग एंड नॉट अलाउ स्टीलिंग, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई डिड नॉट डिमिनिश माय रिस्पेक्ट फॉर द टीचर होल ऑफ माय लाइफ। तो इतने डिफिकल्ट नेगेटिव सिचुएशन में भी उन्होंने अपने को, बचपन में कितनी घटनाएं हैं जिसमें उन्होंने अपने को पॉजिटिव रखा और एक डिफरेंट रिएक्शन दिया जो नॉर्मल दूसरे स्टूडेंट से काफी डिफरेंट होता। एक लास्ट, अच्छा ठीक है, ये और लोगों को ही बोलना है इसलिए मैं 2 कहानी के लिए आपने कहा कि बचपन की कोई कहानी बताइए। नहीं, आखिरी समय मिलेगा फिर बताएंगे विनोद जी। देखिए, गांधी जी के तो जैसा साई जी कह रहे हैं और अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा था, अनेक प्रसंग हैं जो हमको प्रभावित करते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा प्रसंग बता रहा हूँ जिससे, जो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, और वो एक तरह से गांधी जी की कहानी के साथ साथ जुड़ी हुई मेरी कहानी है, जो जिसने मेरे जीवन में बदलाव किया है। वो गांधी जी की कहानी। मैं जब इंटरमीडिएट तक यानी BA तक जो है, मैं स्ट्रॉन्ग एंटी गांधी था। मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एंटी गांधी था। और मेरी, हाँ, और जो गांधी जी की जो की आलोचना जो मेरी मैं करता था, वो वामपंथी नजरिए से करता था। अब आगे बात होगी तो मैं इस पर बात करूंगा कि गांधी जी की 3 धाराओं से गांधी जी का विरोध होता था। उसमें एक धारा वामपंथियों की धारा भी थी। तो मैं उस नजरिए से गांधी जी के आलोचना करता था। और मैं जो गांधी जी को लेकर कि भगत सिंह की माफी का सवाल, फांसी का सवाल, और बहुत सारे सुभाष चंद्र बोस को जिस तरह जाना पड़ा, इन सब चीजों को लेकर के मैं बहुत आलोचना करता था। और मैं गांधी, BA में हमारा एक पेपर था इंडियन मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स का, जिसमें गांधीवाद भी एक विषय था। हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर RK गुप्ता, जो अभी भी हैं, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, अभी काफी बुजुर्ग हैं, मैं उनसे मिलता रहता हूँ। वो गांधीवादी थे और वो पढ़ा रहे थे, राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक। तो जब गांधीवादी चिंतन और विचार वो पढ़ा रहे थे, तो मैं बार बार जो है उसमें एक तरह से खड़ा होकर के तर्क वितर्क उनसे कर रहा था। अगर आपको रामायण का प्रसंग यहाँ पर मानस का मालूम हो, तो जिस तरह काकभूषण ने ऋषि लोमस से प्रसंग किया था, जिसकी बदौलत उसको कौवे की देह मिली थी, तो कुछ उसी अंदाज में मैं अपने गुरु से तर्क वितर्क कर रहा था उस विषय पर। तो वो बड़े प्यार से उन्होंने हमारे तर्कों को सुना, कुतर्कों को सुना, वितर्कों को सुना। उसके बाद मुझसे कहा कि तुम मुझे क्लास के बाद जरा स्टाफ रूम, मेरे रूम कमरे में आना, वहां मैं बात करूंगा। मुझे लगा ये नाराज हो गए हैं, अब मुझको जो है ये आज डांट लगाएंगे। खैर, मैं गया उनके पास, तो उन्होंने बिठाया, बोले तुम गांधी जी के बहुत विरोधी हो।
मैंने कहा हाँ, गांधी जी ने ये किया वो किया। थोड़ा बोले तुमने गांधी जी को कितना पढ़ा है? मैंने कहा बहुत पढ़ा है। बोले क्या पढ़ा है गांधी जी का? गांधी जी की कौन सी किताब पढ़ी है, कौन सा उनका लिखा हुआ पढ़ा है? मैंने कहा मैंने हंसराज रहबर की किताब पढ़ी, गांधी बेनकाब, और एक दो और किताबें मैंने ऐसी बताई जिसमें गांधी जी की आलोचना की गई थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम गांधी जी की आलोचना करना चाहते हो, अच्छी बात है, उनकी आलोचना करो। गांधी जी या कोई भी व्यक्ति आलोचना से परे नहीं है, लेकिन गांधी जी ने जो मौलिक लिखा है उसको पढ़ो, उसके बाद उनकी आलोचना करो। और किसी की भी आलोचना करने के लिए उसका लिखा हुआ पढ़ना जरूरी है, दूसरों की टिप्पणियों के आधार पर अपनी धारणा मत बनाइए। मैंने कहा मैं क्या पढ़ूं, गांधी जी ने तो बहुत लिखा है। तो कहा कि सबसे पहले जो है तुम मेरा सत्य के प्रयोग, जो गांधी की किताब है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, वो पढ़ो, और या तो अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में पढ़ो। मैं गया और कानपुर में माल रोड पर, आपको पता ही है, करंट बुक डिपो हुआ करता था, अभी भी शायद है, वहां इस तरह की किताबें मिलती थी। मैं वहां से किताब खरीद के लाया और उसको मैं 2 दिन में किताब पूरी पढ़ गया। उसमें तमाम प्रसंग है गांधी जी के, एक से एक प्रेरणादायी प्रसंग है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे प्रभावित किया वो बात जो शायद हम में से कोई भी किसी से शेयर नहीं करना चाहेगा, हालांकि गांधी जी ने उसमें सब लिखा है, उन्होंने अपनी तमाम कमियां लिखी हैं, उन्होंने अपनी तमाम आलोचनाएं खुद की हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि जब उनके पिताजी मृत्यु की शैया पर थे और जीवन के अंतिम क्षणों में सांसें ले रहे थे, तब वो बगल के कमरे में अपनी पत्नी के साथ जो है रति क्रिया में व्यस्त थे। वो उन्होंने लिखा है, शायद हम में से कोई चीज नहीं लिखेगा, बड़े से बड़े आदमी नहीं, लेकिन उसको छिपाएंगे, लेकिन गांधी ने उसको लिखा है। तो ये चीज जो है, इसने मुझे, उस पूरी किताब ने मुझे प्रभावित किया, लेकिन इस घटना ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया कि वाकई जो व्यक्ति इस हद तक अपने को खोल के रख सकता है लोगों के सामने इतनी पारदर्शिता के साथ, तो वो वाकई वो व्यक्ति महान व्यक्ति है। और उसी दिन उस किताब को पढ़ने के बाद मेरे विचारों में परिवर्तन हुआ। मैंने गांधी जी को पढ़ना शुरू किया, फिर गांधी जी की और तमाम पुस्तकें पढ़ी, उनके बारे में तमाम लिखा गया वो पढ़ा, और मैं उसके बाद से गांधी जी का आप अनुयायी कहिए, वैचारिक समर्थक कहिए, जो भी कहिए, गांधीवादी कहिए, मैं हो गया। और उसके बाद से मैं दृढ़ता के साथ अपने को गांधीवादी मानता हूं और गांधीवादी हूं। तो आगे जब चर्चा चलेगी तो और चर्चा करेंगे, लेकिन ये प्रसंग मैंने इसलिए आप लोगों के सामने। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस नोट जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो नाउ डॉक्टर आशु, आप बताएं कि आपको गांधी जी की जो विचारधारा है, यू हैव रिटन मेनी बुक्स, सो नो इश्यू एज सच, फिर भी आप जितने भी ऑडियंस है उनको जरा बताइए आपके अंदर क्या परिवर्तन, क्या गांधी जी की विचारधारा ने परिवर्तन किया? गांधी जी की आत्मकथा का एक भाग हमारे प्राइमरी क्लास में एक पाठ के रूप में निर्धारित था। प्राइमरी क्लास का विद्यार्थी था, जो अध्यापक पढ़ाने के लिए आया था, और वो जो पाठ भी था, वो दोनों इस ढंग से हमें प्रभावित कर रहे थे कि उसमें हमें ये लगा वो उनके पास प्रथम श्रेणी की टिकट है, रेल में प्रथम श्रेणी की टिकट होते हुए भी के लिए उन्होंने मनाही कर दी थी उधर के उनके ब्रिटिश अंग्रेज अफसर ने। इसलिए उनको उधर से बाहर फेंक दिया और मैट्रिसबर्ग के रेलवे प्लेटफॉर्म पर वो गिड़गिड़ा कर लेटे हुए थे। लोग उन्हीं के बचाव में कुछ लोग आए हुए थे, लेकिन उन्होंने ये बताया कि तो उसके लिए मामला दायर कर सकते हैं, इस प्रकार की सलाह गांधी जी को मिली थी। लेकिन गांधी जी ने यह बताया, ये अश्वेत होने का जो प्रसंग है, ये केवल मेरे लिए लागू नहीं है, मेरे समान इधर सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं, तो उनके साथ जो अन्याय चल रहा है, उनके साथ जिस प्रकार के वो बर्ताव हो रहा है, ये केवल मेरे लिए मामला दायर करने से कोई फायदा नहीं, इसके लिए जन जागरण की जरूरत है, लोगों को खड़ा करना है। एक उधर अब्दुल्ला कंपनी के वकालत के लिए वो चले गए थे, लेकिन जनता की वकालत लेने के लिए गांधी जी को उनका जो कठिन अनुभव था, उस कठिन अनुभव ने गांधी जी को एक आत्मा प्रेरणा दी थी। उसी प्रेरणा को, जिस प्रकार गौतम बुद्ध को कहाँ प्रेरणा मिली थी, बोधि वृक्ष के नीचे बैठने से उनको ये प्रेरणा मिली थी। लेकिन गांधी जी को मैट्रिसबर्ग के रेलवे स्टेशन पर जो कठिन अनुभव हुआ था, जो एकदम इतना कठोर अनुभव हुआ था, उस कठोर अनुभव से उन्होंने सीख लिया था कि मैं अपने सहजीवियों के प्रति जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, और उस प्रकार के तमाम लोगों के एक प्रतिनिधि के रूप में मुझे इस प्रकार के उत्पीड़न का भुक्तभोगी बन रहा हूँ। तो तमाम भुक्तभोगियों को एक मंच पर लाना, उनको संगठित करना, ये विचार गांधी जी में आया था। ये प्रसंग मेरे लिए जीवन में, क्योंकि अब केवल अपने बारे में नहीं,
अपने साथ जो लोग हैं, अपने देश में जो लोग हैं, उन्हीं के बारे में सोचकर ही कदम बढ़ाना होगा। अपने लिए न्याय मिलना काफी नहीं है, अपने साथ जो लोग हैं उनको भी न्याय मिलना है, उनको भी समता और ममता मिलना जरूरत है, उसकी जरूरत है। ये जो पाठ है ये मैंने अंग्रेजी में पढ़ा, हिंदी में पढ़ा, मलयालम में पढ़ा, तब जाकर के गांधी जी के प्रति इस प्रकार का एक लगन और लगाव का एक प्रसंग मेरे मन में आज भी वो उस प्रकार के सर्वहित के बारे में सोचना गांधीवाद की एक सबसे बड़ी खूबी है। यही मेरा सबसे प्रेरक प्रसंग रहा है। नमस्कार। वेरी गुड, वेरी गुड। यही गांधी जी की एक्चुअली साउथ अफ्रीका से ही उनके अंदर ये परिवर्तन आया। और इसको मैं जब किताब पढ़ रहा था उसमें बोला कि गांधी जी को आप 3 भाग में देख सकते हैं क्या, एक मोहनिया, एक मोहनदास और एक महात्मा। दे आर द 3 phases ऑफ महात्मा गांधी। व्हेन ही वाज मोहनिया फेज तो चाइल्डहुड फेज था, फिर मोहनदास बने, वो बैरिस्टर बने, जब बने मोहनदास करमचंद गांधी बने। और उसके बाद जब उनके अंदर एक मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ही वाज ऑब्स्टिनेट टुवर्ड्स द गोल, कि एक बार वो जो ठान लेते थे तो ठान लेते थे, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर के वहां गए थे या चौरा चौरी कांड था या कोई भी एक बार उनको लगता था करना है तो करना। और यही आज हम लोगों को बोलते भाई, व्हेन यू कैन ओनली बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन, जब आपको लगेगा ये काम हमको करना है। जितने हमारे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव हैं या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, दे नीड टू थिंक कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे बढ़ा, क्या करें। अगली में रामनेश त्रिपाठी जी का उदाहरण है इस किताब में, कि जब वो गांधी जी से मिलने में 5 मिनट बाकी थे, तभी मैं महादेव भाई के पास पहुंचा। महादेव भाई शायद उनके सेक्रेटरी थे, ले लीजिए। महादेव भाई मुझे लेकर बापू के कमरे में गए। बापू पलंग पर बैठे थे, चरखा चला रहे थे, फर्श पर करीब 2 हाथ की दूरी पर आसन बिछा था। आज भी 2 गज की दूरी हम लोग बात करते हैं तो 2 हाथ की दूरी थी। मैंने समझा कि बापू को याद था कि उन्होंने मुझे 4 बजे का समय दिया है। हंसी तो बापू के होठों में खेलती रहती थी। हंसे और आसन में बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। बापू ने कहा, तुलसीदास का कुछ सुनाओ। मैंने तुलसीदास का दोहा सुनाया। तुलसी राम स्नेह करूं, त्यागी सकल उपचार, जैसे घटत न अंक नौ के लिखत पहाड़। मैंने अर्थ बताया कि अन्य सब प्रकार के प्रयत्नों को छोड़कर अविचल भाव से राम के स्नेह से इस प्रकार स्नेह करना चाहिए कि 9 का पहाड़ा लिखने पर 9 का अंत घटता नहीं है। यानी कि उन्होंने उदाहरण दिया, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9। इस ऐसी तरह से 36, 45, 63, 72, 81 के सभी अंकों को जोड़ने से 9 का अंक बनता है। अर्थात 9 अनेक रूपों में गया, लेकिन उसका 9पन सब में एक सा कायम रहा। इसी तरह मनुष्य चाहे जिस अवस्था में रहे, राम के स्नेह में कमी नहीं होनी चाहिए। ये रामनरेश त्रिपाठी जी ने गांधी जी से कहा। इस पर बापू कहने लगे, देखिए आप कैसे उनकी जो इनोवेशन थी, हाउ ही यूज्ड टू टेक द वर्ड्स एंड यूज इट फॉर द पर्पस। कहने लगे मानो 9 एक आदमी है, मतलब 9 कुछ नेटवर्क का इशू है शायद। कुछ आवाज नहीं आ रही सर। जी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क का इशू है। आवाज भी लेकिन नहीं आपकी आवाज लेकिन आपकी आवाज आ रही है। हाँ मेरी तो आ रही, आपकी भी आ रही। कर्नाटक जी की आवाज नहीं आ रही है। आशुतोष के यहाँ से ना आवाज नहीं आ रही। कर्नाटक जी की आवाज नहीं आ रही और शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। डिस्कनेक्ट हो गया उनका, वो फोटो भी, उनका पिक्चर भी नहीं आ रहा। जी तो अभी भी नहीं आया। तो इन द मीन टाइम सर, जब तक वो ज्वाइन करे, अग्निहोत्री साहब आप थोड़ा आगे बढ़ाएं तो। देखिए डॉक्टर आशु जी हैं यहाँ पर, गांधी जी पर इनका बहुत काम है। हम लोग तो थोड़ा बहुत जो कुछ पढ़ा है उसी आधार पर बात कर सकते हैं, लेकिन चूंकि तुलसीदास जी का प्रसंग चल रहा था, तो गांधी जी की जो रामराज्य की परिकल्पना है, जो उनकी है, वो उनकी और तुलसीदास की रामराज्य की परिकल्पना लगभग एक ही है, कि जिसमें दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज ने काहू व्यापा, जिसमें दैहिक कष्ट, दैविक कष्ट और भौतिक कष्ट, तीनों कष्टों से जो परे हो,
वही राम राज्य है। ये तुलसीदास जी की परिकल्पना है, यही महात्मा गांधी जी की परिकल्पना राम राज्य की है। बाकी तो राम राज्य की अलग अलग व्याख्याएं इस देश में इस समय हो रही हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो मौलिक कल्पना है गांधी जी की वो यही है। मुझे लगता है शायद कर्नाटक ने ज्वाइन कर लिया। जी जी, कर्नाटक साहब अनम्यूट करके चालू करें, अनम्यूट करें सर आप, कर्नाटक साहब अनम्यूट करें। ओके 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 जी, ओके। आपका संपर्क टूट गया था बीच में। चलिए कोई बात नहीं, अगर ऐसा बीच हो जाए तो विनोद जी आप पकड़ लीजिएगा, थोड़ा इनको गांधी जी के बारे में बताइए। नहीं बताना क्या, हमको सबको सीखना है एक दूसरे से। टेक्नोलॉजी कुछ भी हो सकती है। जी, तो विकल्प भी जब वो देखना 9 होगा। की बात कही, उन्होंने कहा नाम का स्नेह कम नहीं होना चाहिए, सुनकर बापू कहने लगे मानो 9 एक आदमी है। 18 का होने पर उसने अपने स्वभाव के गुणों और दोष को अलग कर दिया। जब वो 18 का हुआ, उसका एक गुण बन गया और 8 जो है उसका अवगुण बन गए। उसने अवगुण को कम करने का प्रयोग शुरू किया, उस आदमी ने अवगुण को कम करने का प्रयोग शुरू किया। 27 तक पहुंचते पहुंचते उसने एक गुण घटा दिया, यानी कि 8 में से 1 हट गया तो यहाँ 2 हो गया और इधर 7 हो गए। 7 हो गए। इस तरह 9 वर्षों की अवधि बात कर प्रत्येक अवधि में गुण बढ़ाते गए और एक अवगुण कम करते गए। तो 45, 54, 63, 72, 81 की अवधि पूरी की खत्म होगी और अंत में अवगुण खर्च हो गया और 9 जैसे निर्दोष निर्विकार रूप में संसार में आया था, वैसे ही निर्विकार रूप में दिखाई देने लगा। तो ये गांधी जी थे, कैसे उन्होंने अपनी बात को पेश करने के लिए, अपनी बात को लोगों को बताने के लिए हाउ व्हाट एक्सपेरिमेंट यूज्ड टू डू। सिमिलरली आज जो हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, ये हमारी निगेटिविटी को कम करता है, ये हमारी निगेटिविटी को कम करता है एंड कन्वर्ट यू एंड ए टोटल 9 एंड विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। So with this I am starting now question number 3। साई जी, आप 3 एट्रीब्यूट बताइए गांधी जी के जो आप दर्शकों से, जो आप पार्टिसिपेंट से शेयर करना चाहते हैं। 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ गांधी जी। साई जी, 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ गांधी जी। आप वीडियो बंद कर लीजिए, ऑडियो पे भी बोलिए बस। चलिए आते हैं इनके पास, फिर से लौट के आते हैं। अब विनोद अग्निहोत्री जी, आप चूंकि जर्नलिज्म में, यू बीइंग इन ए जर्नलिज्म, हाउ यू फील टू प्रोपगेट गांधी जी टीचिंग, व्हाट आर द 3 एट्रीब्यूट ऑफ गांधी जी विच यू वुड लाइक टू शेयर विद ऑडियंस। आप ये बताइए, चूंकि आप सबने पॉजिटिव जर्नलिज्म की बात भी करी थी कि कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं, तो गांधी जी की कोई टीचिंग जो जर्नलिज्म में लोगों को यूज करनी चाहिए, वो क्या हो सकती है? सबसे पहले तो कर्नाटक साहब, मैं आप चाहे उसको मजाक के लहजे में ले, लेकिन मैं आपके साहस को धन्यवाद दे रहा हूँ कि कोविड के पीरियड में आप बार बार पॉजिटिव बात कर रहे हैं, जबकि इस समय लोगों को नेगेटिव ज्यादा पसंद आ रहा है। नहीं, हमने तो ये बोला, हमने ये बोला लाइटर मोड में, लाइटर नहीं, हमने बोला ये कोविड जो है वो पेंडेमिक नहीं है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू रीवर्क ऑन यू। बिल्कुल, वो तो सबको, हमको चिंतन और आत्ममंथन और आत्मावलोकन का मौका मिला है इस वर्ष। हाँ, हम सबने अपने भीतर भी झांकने की कोशिश की है और काफी हद तक जो है अपने को खोजा भी है। देखिए, गांधी जी वकील बैरिस्टर थे पेशे से, लेकिन गांधी जी लेखक बहुत अच्छे थे। जिस तरह वो हरिजन में लिखते थे और लगातार वो लेखों के जरिए अपनी बात करते थे, मतलब एक तरह से वो पत्रकार भी थे। पेशे से वकील जरूर थे, लेकिन पत्रकारिता का भी इतिहास अगर लिखा जाता है तो महात्मा गांधी का योगदान उसमें कम नहीं है। उन्होंने अपनी बात जिस तरह लोगों से पहुंचाई अपने लेखों के जरिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम पत्रकारों को भी गांधी जी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और एक बात मैं यहाँ पर जोड़ दूं कि महात्मा गांधी दुनिया के तमाम सारे महान लोगों में से अकेले व्यक्ति हैं जिसपे हम हिंदुस्तानियों को गर्व होना चाहिए कि दुनिया के हर बड़े शहर में गांधी जी के नाम पर कुछ न कुछ है। या तो कोई इंस्टीट्यूट होगा, या किसी सड़क का नाम होगा, या कहीं मूर्ति लगी होगी किसी पार्क में, या किसी लाइब्रेरी में कोई कोना होगा, या किसी इंस्टीट्यूट में कोई चेयर होगी महात्मा गांधी के। और दुनिया के किसी भी नेता या किसी भी दार्शनिक या किसी भी बड़े आदमी के नाम पर ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर जगह कहीं ना कहीं हो। ये एक बहुत बड़ी चीज है और मुझे लगता है इस पर हम सब हिंदुस्तानियों को गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के, हमारे राष्ट्रपिता को, हमारे महानायक को जो है दुनिया मानती है। और इसीलिए
दुनिया में कहीं भी मानवतावादी आंदोलन जब होते हैं, कहीं भी जब मानव अधिकारों का सवाल उठता है, कहीं भी प्राकृतिक अधिकारों का सवाल उठता है, कहीं भी पर्यावरण का सवाल उठता है, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को याद किया जाता है तो महात्मा गांधी को याद किया जाता है। चाहे वो मार्टिन लूथर किंग का आंदोलन हो, चाहे नेल्सन मंडेला की लड़ाई हो, चाहे बराक ओबामा का हो, या हांगकांग में जैसे अभी हुआ वहां भी लोग गांधी जी की तस्वीरें लेकर के कर रहे थे, या भारत में भी जहां भी किसी तरह के अधिकारों की और अत्याचार और अन्याय के खिलाफ अगर लड़ाई होती है, उसमें महात्मा गांधी को ही याद करके लड़ाई लड़ी जाती है। जहां तक उनसे सीखने की बात है हम पत्रकारों को, तो सबसे बड़ी बात ये सीखने की है कि आजकल पत्रकारिता में तटस्थता का बड़ा जोर है। गांधी जी कहते थे कि हम तटस्थ होना उचित नहीं है, आपको सत्य के साथ और तथ्य के साथ होना चाहिए। तटस्थता का मतलब तो डाकिया हो गया कि आपने एक आदमी से एक बात ली और दूसरे को पहुंचा दी। पत्रकार तटस्थ नहीं हो सकता, वो सक्रिय हो सकता है और सत्य और तथ्य के साथ होना पड़ेगा उसको। अच्छा, मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे अभी ताजा घटना हाथरस की है, जिसको लेकर के पूरा, अब इसमें जो सत्य है और जो तथ्य है उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा ना। आप पक्ष रख दीजिए सरकार का या दूसरे व्यक्ति का, लेकिन तथ्य से अलग होकर नहीं, आप अपने को उससे अलग नहीं हो सकते। अगर तथ्य और सत्य से अलग होते महात्मा गांधी तो अपने लेखों में वो तो फिर वो निर्गुण किस्म के लेख लिखते, फिर वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ, अंग्रेज सरकार के काले कानूनों के खिलाफ, सामाजिक अत्याचार के खिलाफ, राजनीतिक अत्याचार के खिलाफ न लिखते, फिर निर्गुण लेख लिखते। हाँ भाई बहुत अच्छा है, लाट साहब ने ये बड़ा अच्छा किया। इसलिए सत्य और तथ्य का जो संदेश है महात्मा गांधी का, उससे हम लोग को सीखना चाहिए। दूसरी बात मुझे लगता है गांधी जी से ये सीखने की जरूरत है कि जो आप कहें, जो एक आज के जमाने में बड़ी रेयर चीज हो गई है, एक मतलब इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं वो लोग जो इस पर अमल करते हैं कि जो आप कहते हैं उस पर अमल करें। उल्टा हो रहा है, हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जो हमारा पाखंड है कि हम, हमारा सार्वजनिक बयान और निजी जीवन दोनों में बहुत फर्क है। गांधी जी इस पर, इसके बहुत मतलब खिलाफ थे। वो गुड़ वाली कहानी उनकी मशहूर है, सब जानते हैं। इसीलिए गांधी की आवाज कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक सुनी जाती थी, बिना व्हाट्सएप के, बिना फेसबुक के, बिना इंटरनेट के, बिना ईमेल के, बिना रेडियो के, किसी बिना टेलीविजन के, सिर्फ छोटे छोटे लीफलेट से या उनके लिखे हुए लेखों से या उनके वक्तव्यों से। क्यों? क्योंकि हृदय से बोलते थे और जो बोलते थे उस पर अमल करते थे। इसीलिए जब चौरी चौरा कांड हुआ तो पूरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी उस पक्ष में नहीं थी कि उस असहयोग आंदोलन को वापस ले लें, लेकिन उन्होंने वापस लिया क्योंकि उनको लगा कि कहीं ना कहीं विचलन है जो आगे बड़ी हिंसा में बदल सकता है। बहुत सारे प्रसंग हैं जिन पर बात कर सकते हैं। तो पहली बात सत्य और तथ्य, दूसरा जो आप कहें उस पर अमल करें, उस कोशिश करें उस पर अमल करने की। और जो आपने भी 9 वाली बात कही, तो मतलब 9 तक पहुंचने की कोशिश करें। एक दिन में नहीं होता है, समय लगता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा विचार है वो है सादा जीवन उच्च विचार। जो महात्मा गांधी जब जॉर्ज पंचम के सामने गए हैं और अधनंगी कपड़ों में गए हैं, और जॉर्ज ने, जब राजा ने उन पर व्यंग्य किया कि हिंदुस्तान का अधनंगा फकीर, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपने इतने सारे कपड़े पहन लिए, किसी के पास कपड़े बचे ही नहीं। तो इतना करारा वो जो सादा जीवन उच्च विचार था उनका। और आपको एक प्रसंग बता के मैं इस बात को करूंगा। चर्चिल जो गांधी जी के बहुत बड़े विरोधी थे, जिन्होंने उनको अधनंगा फकीर कहा था महात्मा गांधी को, चर्चिल का बेटा भारत आ रहा था, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो तो कम से कम 6 महीने महात्मा गांधी के साथ रहना और सीखना। और तब चर्चिल ने इस बात को प्रधानमंत्री पर से हटने के बाद कहा कि मैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री के तौर पर गांधी का विरोध करता था, लेकिन व्यक्ति के तौर पर मैं गांधी को महान मानता हूँ। वेरी गुड, थैंक यू विनोद जी। देखिए ये गांधी जी के विचार थे। आई थिंक तो कुछ तो हम इससे ले लें, कम से कम सत्य तथ्य के साथ, एंड दिस इज रिक्वायर्ड। ये हम लोगों को हमारे ऑफिशियल जीवन में भी ये बहुत काम आता है कि आप सच और फैक्ट, इसे हम बोलते हैं कि पहले हमेशा फाइल में व्हाट आर द फैक्ट्स दैट यू शुड राइट। और कई बार हमको फैक्ट पता ही नहीं रहते और हमारा डिसीजन कुछ गड़बड़ हो जाता है। सो वी हैव टू बी मोर बेस्ड ऑन द फैक्ट। नंबर 2, ये बिल्कुल सही बात है जो आप कहें, इसलिए वॉक द टॉक लीडरशिप में बोलते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है कि भाई जो लीडर होता है वो बोलता कुछ है, करता कुछ है, सुनता कुछ है और दिखता कुछ है। तो इसीलिए वो लीडरशिप बनती नहीं है। तो एक लीडरशिप का ये बहुत बड़ा लेसन होता है, आप वही अगर बोलो तो करो, नहीं बोलो तो नहीं करो। जैसे आज हम लोग के लिए बड़ा मुश्किल था, हम 2 अक्टूबर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट आई टॉक टू आरसी गुप्ता जी। मैंने कहा देखो हमने लास्ट टाइम कमिटमेंट किया है तो आज तो होना ही होना है। सो वॉक द टॉक होना बहुत जरूरी है। और 9 तक पहुंचने का बिल्कुल आपने सही बोला, हम लोग कोशिश करें। और सादा जीवन उच्च विचार, वो तो बहुत बड़ी चीज थी। अब मैं आता हूँ डॉक्टर आरशु, आपके पास आता हूँ कि आप बताइए
you being the chair of Gandhian Studies, आप वहाँ पर काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट में. What all research you are doing to disseminate positive attributes of Gandhi ji among the younger generation? जो नई जनरेशन आ रही है उसके लिए आप केरल में क्या कर रहे हैं? इसमें साध्य और साधन की परस्पर पूरक पवित्रता, ये गांधी जी की सबसे बड़ी देन है. क्या है साध्य और साध्य और साध्य और साधन. आपका लक्ष्य अच्छा होना काफी नहीं है. आप जिस मार्ग को अपना रहे हैं वो मार्ग अगर पवित्र नहीं है तो आपका लक्ष्य के पवित्र होना कोई मायना नहीं रखता है. ये हमारी युवा पीढ़ी को इस प्रकार के एक इंस्पिरेशन इंस्टॉल करने की सबसे बड़ी जरूरत है. आज हम सबके सामने एक अच्छे लक्ष्य सबों के पास है, लेकिन अच्छे मार्ग क्या उनके पास है, ये विचारणीय बात है. गांधी जी ने हमें ये एक प्रसंग में हमें ये बता दिया था कि मैं एक सारग्राही व्यक्ति हूँ, यानी मैं अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को खोल कर रखना चाहता हूँ. उधर से जितनी भी हवा आ जाए मैं उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे भी उड़ा कर ले जाने वाली जो हवा है वो हवा मेरे लिए उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा. तो यानी विचार पश्चिम के हो या जिहार पूर्व के हो या अन्य बहुत सारे विचारकों के हो, अन्य बहुत सारे विचारकों के दर्शनों से गांधी जी को प्रेरणा मिली थी. उन्होंने उसको एकदम नकारा नहीं था, लेकिन उसमें सकारात्मक जो कुछ भी है, उसमें पॉजिटिव जो कुछ भी है, उस प्रकार की एक दिशा में उन्होंने युवा पीढ़ी को उस दिशा में युवा पीढ़ी को सोचने के लिए एक मंच तैयार करना हमारा एक लक्ष्य है. तीसरा, आज हम ये देख रहे हैं कि जहां हमारे पास अधिकार नहीं है, सत्ता नहीं है, इसलिए हम सेवा नहीं करते. गांधी जी के पास अपने कोई सत्ता नहीं थी. सत्ता, अगर आपके पास सत्ता नहीं है क्या आप जनसेवा कर सकेंगे? आज बता रहे हैं कि जिनके पास सत्ता नहीं है वो जनसेवा नहीं कर सकेंगे, लेकिन आज भी गांधी जी के बहुत सारे अनुयायी हमारे सामने हैं. सुंदरलाल बहुगुणा हैं, अन्ना हजारे हैं, मेहता पटकर हैं और इस वंदना शिव है. इस प्रकार के जितने भी जनसेवी हैं उनके पास कोई सिंहासन नहीं है, लेकिन सिंहासन के बिना, सत्ता के सिंहासन पर बैठे बिना भी आप उसमें जनसेवा के लिए तैयार हो सकते हैं. जनसेवा आपके लिए जनसेवा के लिए आपके अपने मन को ट्यून करना है. आप कुर्सी को देखकर नहीं, अधिकार को, सत्ता को देखकर नहीं, उसको एकदम उसके विशाल दृष्टिकोण के साथ आप करेंगे तो आज गांधीवाद के मार्ग में जितने लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वे लोग हमें उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं. इन्होंने बाबा आमटे ने ये बताया था, क्विट इंडिया वाला जो उनका जो विचार था, आज हमारे लिए निट इंडिया के बारे में जोड़ देना है. KNIT, भारत छोड़ो नहीं, भारत जोड़ो. इस प्रकार के गांधी जी ने भी भारत जोड़ने के लिए प्रयास किया था. तो इस प्रकार भारत को जोड़ने का, भारत को छोड़ने का नहीं, भारत को जोड़ने के लिए आज हम बहुत सारे लोग दूसरे देशों में जाते हैं और उन्हें अपनी अपनी कमाई, अपनी अपनी नौकरी मिल जाती है, तब वो भारत को भूल जाते हैं. तो भारत को जोड़ना, भारत को छोड़ना नहीं है, भारत को जोड़ना है. तो इस प्रकार की जो बातें हैं, युवा पीढ़ी को उसके संबंध में एक दिशा निर्देश देना, उनको मार्गदर्शन देना, उस युग की गांधी को नहीं, गांधी युगीन चेतना को भी गांधी केवल गांधी को अपनाना नहीं है, गांधी युगीन चेतना को आत्मसात करना है, उसको अपनाना है, अपना बनाना है. केवल अपनाना काफी नहीं है, अपना बनाना है. गांधी जी की लाश जब चिता पर रखी गई थी, सत्य अहिंसा जैसे आदर्शों को हमने चिता पर नहीं रखी थी. गांधी जी ने जिन मूल्यों को प्रश्रय दिया था, गांधी जी ने जिन मूल्यों को तरजीह दी थी, ये मूल्य आज भी हमारे समाज में है. उसको फैलाना और उसी के संदेशवाहक के रूप में युवा पीढ़ी को एक उस श्रृंखला की कड़ी के रूप में उनको बदलना वर्तमान भारत की आवश्यकता है. इस पर ध्यान देकर हम आगे बढ़ रहे हैं. नमस्कार. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू. आपने ये बहुत अच्छा कहा, साध्य और साधन. ये बहुत बड़ी चीज है. मीन्स एंड एंड्स, मीन्स एंड एक आपका गोल होना चाहिए और उसके लिए जो मीन्स हैं वो भी उतने ही शुद्ध होने चाहिए. मीन्स एंड एंड्स. विनोद जी, एक्चुअली 2 स्कूल हैं हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे इसमें.
एक है कि हाँ। साध्य आपका पवित्र है तो साधन कुछ भी हो। मतलब हम्म। मैं उदाहरण के लिए अगर महाभारत का उदाहरण लें तो जो पांडवों ने जिस तरह से किया तो उसमें उसका जस्टिफिकेशन यही दिया जाता है कि कौरवों ने जो किया उसका जवाब पांडवों ने दिया, और एक अच्छे काम के लिए उनको छल भी करना पड़ा। तो ये हाँ। एक स्कूल है कि शुद्ध, अगर आपका साध्य शुद्ध है तो साधन कुछ भी हो। लेकिन गांधी जी इसका निषेध करते थे। गांधी जी कहते थे नहीं, जितना साध्य पवित्र हो उतनी ही शुचिता साधन की भी होनी चाहिए। तो साध्य और साधन की जो शुचिता है वो हमारे लक्ष्य को निर्धारित करती है। और इसीलिए जो मार्क्सवाद और गांधीवाद के बीच में सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि लक्ष्य दोनों का एक ही है, सामाजिक और आर्थिक समानता और समता, और एक ऐसे समाज की स्थापना जहां राज्य का हस्तक्षेप ना हो, जहां व्यक्ति अपनी स्वतंत्र चेतना विकसित कर सके। लेकिन मार्क्सवाद उस काम को हिंसक क्रांति से करना चाहता है, वर्ग संघर्ष से करना चाहता है। गांधी उसको मानव चेतना को जगा करके और लोगों को बदल के करना चाहते हैं। तो इसीलिए जब साधन आपका पवित्र होगा तो साध्य भी पवित्र होगा और साध्य टिकाऊ होगा। अगर साधन आपका शुद्ध नहीं है तो वो साध्य टिकाऊ नहीं होगा, वो भी अपवित्र हो जाएगा, जो कि उसका जो मूल है, उसकी जो जड़ है वो पवित्र नहीं है। इसलिए गांधी जी कहते थे कि साध्य की जड़, जो साध्य की बुनियाद, जो साधन है, वो भी पवित्र होना चाहिए, तभी वो टिकाऊ और दीर्घकालिक होगा। वेरी गुड। अभी वेरी गुड, वेरी गुड। अभी एक पार्टिसिपेंट ने बोला कि साहब थोड़ा शास्त्री जी के बारे में बताएं। विरोध जी थोड़ा दो शब्द अगर बता सकते हैं तो बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरे को देखिए एक मेरे को याद आता है, जब बचपन में थे, अभी मैं कभी कभी यूज करता हूँ, बट आई एम नॉट रेड अबाउट शास्त्री जी कि कभी देश में ऐसा। हाँ जी बताइए जरा सर। नहीं आप बताइए, फिर बताता हूँ मैं जोड़ूंगा। हाँ, तो उन्होंने ये बोला था भाई, कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी, क्या हो गया था, तो उन्होंने बोला था कि भाई क्यों नहीं हम स्वदेशी को अपनाएं और या एक रोज का खाना कम खाएं या समथिंग लाइक दैट। तो वो भावना कहीं ना कहीं मेरे अभी भी दिमाग में रहती है कि यार व्हाई वी शुड डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। जो आज हम ये चाइना को बंद करो, ये बंद करो बात कर रहे हैं, क्यों ना हम अपने ही आत्मनिर्भर भारत की जो अभी हमारे करंट पीएम ने बात करी है, तो शायद ये वहीं से प्रभावित है। क्या है ये, जरा आप मेरे को एक जरा बताएंगे प्लीज। देखिए शास्त्री जी ने उस समय खाद्यान्न संकट देश में था, हाँ 1900, तो उन्होंने एक अपील की थी लोगों से, और सबसे पहले उन्होंने स्वयं अपने ऊपर लागू किया था कि एक समय भोजन करने का, और उनकी अपील पर बहुत सारे लोगों ने उसको माना था। लेकिन शास्त्री जी का जो प्रारंभिक जीवन था वो बहुत ही साधारण परिवार में उत्पन्न हुए थे। उनकी माँ, उनके पिताजी का देहांत बहुत जल्दी हो गया था, बचपन में ही, शास्त्री जी के बचपन में ही हो गया था। उनकी माँ विधवा थी, बहुत गरीब परिवार में थे, और वो बचपन में पढ़ने जाते थे। तो एक प्रसंग बड़ा दिलचस्प है कि वो एक बार स्कूल से लौट रहे थे तो रास्ते में एक आम का पेड़ था, तो वहां बच्चों ने आम तोड़ना शुरू किया। शास्त्री जी भी तोड़ रहे थे, बच्चे थे। तो जो बाग का रखवाला था, मालिक था, वो दौड़ करके आया और उसने जो है, तो बच्चे सब भाग गए, शास्त्री जी को पकड़ लिया, ये नहीं भाग पाए। तो ये रोने लगे, और रोते रोते उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ का नाम बताया कि मैं उनका बेटा हूँ, मेरे पिताजी नहीं, मुझे छोड़ दो। तो उसने 2 थप्पड़ मारे। उसने कहा कि देखो वो लड़के जो है वो बड़े घरों के लड़के हैं, वो आवारा निकल जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, तुमको ये आवारागर्दी नहीं करनी है, क्योंकि तुम एक विधवा माँ के बेटे हो। तो वो प्रसंग उनका बड़ा महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण प्रसंग मैं शास्त्री जी का शेयर करना चाहूंगा आपके तमाम श्रोताओं दर्शकों से, जो हम सबके जीवन पर के लिए बड़ा प्रेरणादायी है। शास्त्री जी के बारे में बड़ा मशहूर है कि वो गंगा पार करके, तैर करके पढ़ने जाते थे, गरीब परिवार से थे, बनारस में रहे थे, काशी में। और काशी में आचार्य बीरबल जी जो थे, जो काशी विद्यापीठ के उपकुलपति थे, उनके घर में रह करके वो पढ़े थे। और आचार्य बीरबल जी ने उनकी बड़ी सहायता की थी, उनको आगे बढ़ाने में। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बनने के बाद वो बनारस गए, तो काशी गए और वहां सर्किट हाउस में रुके, तो उनसे मिलने काफी लोग आए बनारस के, क्योंकि शास्त्री जी का बनारस से रिश्ता था, वहां पढ़े थे, तो बहुत लोग आए, स्थानीय लोग। महाराजा काशी नरेश भी आए उनसे मिलने, और आचार्य बीरबल जी भी उनसे मिलने गए। शास्त्री जी बैठे, उन्होंने पीए से पूछा कौन कौन मिलने आया, बताया कि राजा साहब भी आए हुए हैं, बीरबल जी आए हुए हैं, सब लोग आए हुए हैं। तो शास्त्री जी ने तुरंत जो है कहा बाकी लोगों को भेज दो और आचार्य जी से कह दो कि अभी नहीं मिल पाएंगे। आचार्य जी से कह दिया कि अभी आपसे नहीं मिलेंगे, बाद में फिर मिलेंगे। तो उसने पीए ने जाकर के उनसे कह दिया कि साहब अभी आपसे नहीं मिल पाएंगे। और तो आचार्य जी ने कहा कोई बात नहीं, व्यस्त है, प्रधानमंत्री हैं, मैं बाद में चला जाऊंगा, आ जाऊंगा। उसके बाद वो अपनी गाड़ी पकड़ करके कार से अपने घर चले गए। शास्त्री जी ने सारे विजिटर्स को जल्दी जल्दी निपटाया और तुरंत बाहर निकले और गाड़ी लगवाई और सीधे आचार्य बीरबल के घर पहुंचे। आचार्य जी अभी कपड़े भी नहीं बदल पाए थे कि शास्त्री जी पहुंच गए, और जाके उनके पैर छुए और कहा कि बाबूजी, लाल बहादुर जब बनारस आएगा तो आप उससे मिलने नहीं आएंगे, वो आपसे मिलने आएगा। तो ये थे शास्त्री जी। तो इसलिए
इस तरह के प्रसंग जो है, और फिर उनके बारे में बहुत दृढ़ व्यक्ति थे। नेहरू जी के जमाने में वो गृह मंत्री भी रहे। नेहरू जी की मृत्यु के बाद वो प्रधानमंत्री बने, देश के कांग्रेस पार्टी ने उनको इलेक्ट किया और फिर युद्ध हुआ। पाकिस्तान चूंकि 62 की लड़ाई हार चुके थे, पूरे देश का मनोबल टूटा हुआ था, सेनाओं का मनोबल टूटा हुआ था, लेकिन 65 में जिस तरह हमने पाकिस्तान को हराया और जिस हद तक जो है लाहौर तक सेनाएं पहुंच गई, और उसके बाद उससे देश का मनोबल भी बढ़ा। दुर्भाग्य से ताशकंद समझौते के समय उनका निधन हो गया। तो शास्त्री जी बहुत महान व्यक्ति थे और बहुत ही सादा, और कभी भी उन्होंने अपनी, क्षमा कीजिएगा मैं किसी को इंगित करके नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज तक तो तमाम राजनेता अपनी गरीबी और अपनी तमाम वंचित जीवन का बड़ा उदाहरण पेश करते हैं। शास्त्री जी ने कभी उसको जो है राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश नहीं की। कभी उन्होंने इसकी दुआई नहीं दी कि मैं विधवा माँ का बेटा हूं, मैं गरीब परिवार से आया हूं। उन्होंने हमेशा देश की सेवा की और देश के लिए ही अपने प्राणों की आहुति दी। मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं। इन्होंने अभी ये जिक्र किया था कि कुछ समय तक वे गृह मंत्री रहे, लेकिन उनका अपना कोई घर नहीं था, इसलिए एक बायोग्राफर ने उनके बारे में लिखा है, ए होम मिनिस्टर विदाउट ए होम। क्या आज के जमाने में ए होम मिनिस्टर विदाउट ए होम, गृह मंत्री का अर्थ गृह होना चाहिए। नहीं, एक होम मिनिस्टर और थे इस ढंग से अपने। डॉक्टर साहब, एक होम मिनिस्टर और हुए हैं, मुझे पूरा करने दीजिएगा। नहीं, मैं जोड़ दूं। इंद्रजीत गुप्ता जी, वो जब होम मिनिस्टर थे तो 2 कमरे में रहते थे वेस्टर्न कोर्ट में। उन्होंने बड़ा घर नहीं लिया था, वो भी अभी बहुत हाल की बात है। चले हाँ जी। एक दूसरा प्रसंग है उनसे जुड़कर। दक्षिण भारत में मद्रास में एक बार एक रेल दुर्घटना हुई थी, बहुत सारे लोग मर गए थे। गांधी जी दिल्ली में बैठे हुए, सॉरी शास्त्री जी दिल्ली में बैठे हुए थे। शास्त्री जी ने बताया कि ये मेरा एक रेल मंत्री के रूप में ये मेरा नैतिक दायित्व है, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। आज नैतिक दायित्व वाला ये कहाँ, उसका नामो निशान तक नहीं है हमारी राजनीति में। जहाँ नीति नहीं है उसी को आज हम राजनीति कहते हैं, है ना। उस समय राजनीति में इतने नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाले, उसको प्रश्रय देने वाले 2 आदमियों के पूरे के रूप में शास्त्री जी और गांधी जी को देखना चाहिए। चलिए अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। आप ही से चालू कर देते हैं कि यूर स्लोगन ऑन सक्सेस। इन्होंने बोला था, 1 मिनट, इन्होंने बोला था कि इफ आई हैव ए बिलीव दैट आई कैन डू इट, आई शैल श्योरली एक्वायर द कैपेसिटी टू डू इट इवन इफ आई मे नॉट हैव इट एट द बिगनिंग। इन्होंने बोला था अगर इफ आई हैव ए बिलीव, मेरे को विश्वास है आई कैन डू इट, आई विल श्योरली एक्वायर द कैपेसिटी टू डू इट इवन इफ आई मे नॉट हैव इन द बिगनिंग। मेरे पास हो सकता है स्टार्ट में वो चीज ना हो, लेकिन अगर मेरे को लगता है ये मैं कर सकता हूं तो मैं उसे करने का पूरी कोशिश करूंगा। इसके साथ ही मैं आखिरी क्वेश्चन की ओर आ रहा हूं डॉक्टर आर्शो आप ही से कि आप सक्सेस के बारे में, योर स्लोगन और सक्सेस क्या है, आप सफलता किसको कहते हैं, व्हाट इज योर डेफिनेशन? बहुत सार्थक क्वेश्चन है आज की युवा पीढ़ी के लिए। आज की युवा पीढ़ी को लक्षित करते हुए आपने जो यह प्रश्न तैयार किया है, वो उसमें आपकी सोच की मौलिकता भी है। हम आपको बधाई देना चाहते हैं। विश्वास और परिश्रम, विश्वास प्लस परिश्रम, फेथ प्लस एफर्ट इज इक्वल टू सक्सेस। अच्छा, जहां विश्वास नहीं है तब हम कुछ आगे बढ़ नहीं सकेंगे। गांधी जी के मन में इतना विश्वास, इतना गहन था, इतना डीप था, ये है डीप फेथ। तो इसी डीप फेथ ने ही उनको आगे चलने के लिए चिंतन का ईंधन बन गया था। फिर उनके लिए परिश्रम, वो हमेशा आलसी, आराम कुर्सी पर बैठकर आलस्य के साथ सोचने वाले नहीं थे। He was not a philosopher sitting in the armchair. He was not an armchair philosopher. वो कर्मयोगी थे, गांधी जी कर्मयोगी थे। जहाँ विश्वास प्लस परिश्रम है वहाँ हमें ये सफलता, सक्सेस, E is equal to MC square। इसी प्रकार विश्वास प्लस परिश्रम इज इक्वल टू सक्सेस। यही मेरा उसके संबंध में सक्सेस के बारे में। जहाँ विश्वास है लेकिन कुछ लोग परिश्रम नहीं करते हैं, कुछ लोगों के पास परिश्रम है लेकिन विश्वास नहीं है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का सक्सेस, इन दोनों का ब्लेंडिंग जिधर होता है, हम होंगे कामयाब। एक दिन का अर्थ है कि 364 days आर फेलियर, है ना। हम होंगे कामयाब एक दिन, माने ये निषेधात्मक है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है। बहुत बढ़िया, हम होंगे नेगेटिव है। तो एवरी डे विल बी सक्सेसफुल, एवरी डे शुड बी, हम होंगे कामयाब हर दिन, ये हमारा नारा होना चाहिए। तभी वो पॉजिटिविटी के रूप में हम
ये देख लेंगे। विश्वास प्लस परिश्रम इज इक्वल टू सक्सेस, Very इज good, इक्वल टू MC स्क्वायर। इक्वल टू MC स्क्वायर है। वेरी गुड। एक्चुअली इसीलिए हम बोलते हैं कि सक्सेस इज और बर्थ राइट। मैंने अभी इसके हाँ ऊपर जी। रिसर्च किया। अभी मैं 3 मॉड्यूल की बुक लिख रहा हूँ, होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर इट शुड कम, कि हाँ। फेलियर तो एक स्टेज है सक्सेस की, अल्टीमेट जी, इज जी, जी। सक्सेस। हम लोग बीच जी, में जी। रास्ता छोड़ के चले आते हैं तो हम बोलते हैं फेलियर है। विनोद जी, आपकी ओर से सक्सेस की परिभाषा। देखिए, मैं तो अब जो डॉक्टर अर्शु जी ने कहा है वो तो बहुत, उन्होंने एक फार्मूला दे दिया, E इक्वल टू MC स्क्वायर। मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया चीज है और हम सबको हमारे लिए भी बड़ी प्रेरणादायक है, क्योंकि अभी भी हम ठीक है उम्र के एक पड़ाव में हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हमें भी बहुत प्रेरणा मिली है। लेकिन मैं अपने हमारी जो हमारी जो संस्कृति है उसमें कई ऐसे छोटे छोटे वाक्य हैं जिनसे हमको प्रेरणा मिलती है। जैसे एक शेर हमेशा हम लोग कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, हम लोग कहते हैं। रामचरितमानस में हनुमान जी के लिए है, लेकिन वो सब पर लागू होता है कि कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हुई ताद तुम पाही। ये जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि ऐसा कौन सा काम है जो तुमसे नहीं हो सकता। तो ये बात हम सब पर लागू हो सकती है कि ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते। इसलिए जो डॉक्टर साहब ने कहा कि विश्वास प्लस परिश्रम बराबर सक्सेस, अगर व्यक्ति के अंदर भरोसा है कि हम ये काम करें तो निश्चित रूप से वो काम करेगा और सफलता मिलेगी। इसलिए सबसे बुनियादी शर्त है ये आत्मविश्वास होना कि हाँ, हम इसको पा सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं। इसलिए जो है मुझे लगता है कि आत्मविश्वास और मनोबल अगर आपका मजबूत है तो आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें ये तय करना पड़ेगा हम चाहते क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। पहले हमें मंजिल तय करनी पड़ेगी और तब विश्वास और भरोसा जगाना पड़ेगा और उसके बाद उस लक्ष्य की ओर चलना पड़ेगा और निश्चित रूप से उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। सबके अलग अलग लक्ष्य होते हैं। कोई अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई अच्छा वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई अच्छा संगीतकार बनना चाहता है, कोई अच्छा कलाकार बनना चाहता है, कोई अच्छा जो है दार्शनिक बनना चाहता है, कोई अच्छा वक्ता बनना चाहता है, कोई अच्छा नेता बनना चाहता है। हर एक के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। तो अपना लक्ष्य पहले तय करना पड़ेगा। पहले ये तय करना पड़ेगा कि हमको जाना कहाँ है। हम दिल्ली से हमको मुंबई की तरफ जाना है या कोलकाता की तरफ जाना है। हमें जाना कोलकाता की तरफ है, हम चल दें मुंबई के रास्ते पर तो कैसे पहुंचेंगे। तो इसलिए पहले लक्ष्य तय करें हम, उसके बाद उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग, विश्वास और मेहनत, उसके बाद लक्ष्य मिलना तय है। वेरी गुड, वेरी गुड। साई जी, आपकी ओर से आपसे एक निवेदन है, इन विशेषज्ञों का फोन नंबर, ईमेल वगैरह वगैरह है, हाँ भेज देंगे, दे दीजिएगा ताकि हमारे बीच में आप बाद में भी संपर्क सूत्र बना रहेगा। ठीक है, ठीक है, भेज देंगे आपको। और कर्नाटक की एक चीज में थोड़ा सा जुड़ दूं, गांधी जी से जुड़ी हुई, कि गांधी जी से पहले भी कई लोग फर्स्ट क्लास के डिब्बे से धक्का देकर उतारे गए होंगे, जो गलती से चढ़ गए होंगे। लेकिन गांधी जी के अंदर जो विश्वास था कि अब हमको इस निजाम को ही बदल देना है, करेक्ट, जो ये विषमता वाला जो ये समस्या श्वेतों की है, तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से लड़ाई शुरू कर दी। उस देश से जहां वो पहली बार गए थे, वहां उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। और दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई की सफलता के कारण ही कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने गांधी जी को आमंत्रित किया कि आप आइए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए, सरदार पटेल और उन सारे लोगों ने। तो ये गांधी जी से भी जुड़ी हुई चीजें तय कर लें जी। एक्चुअली गोल के प्रति जो जिद एक होती है ना, ऑब्स्टिनेशन टुवर्ड्स द गोल, वो मैं देख रहा हूँ गांधी जी में कहीं ना कहीं छुपी थी। वो लिखा नहीं है कि मैं इसके प्रति जिद्दी था, बट मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक बार उनको जब साउथ अफ्रीका में वो लगा यार यहाँ बड़ा डिफरेंशिएशन हो रहा है, देन ही माइट हैव टेकन दैट कॉल कि यार मेरे को कुछ करना ही करना पड़ेगा इसके लिए, और कोई चारा नहीं है। तो साई जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ कि आपके लिए सफलता का परिभाषा क्या है? साई जी सुन नहीं पा रहे, आपका म्यूट है, आपका माइक म्यूट है। हाँ, अब बोलिए, फिर म्यूट हो गया। चलिए, आप एक काम करिए, लिख के भेज दीजिए। सो विद दिस मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि दिस इज गुड। हम लोग आज मिले हैं, कंक्लूड हम करते हैं इसे। फ्रॉम फाइनली गिविंग सक्सेस मंत्रा जो आप लोगों ने हमको दिया कि भाई एक आपका गोल की सिद्धि होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए और आपका आत्मविश्वास होना चाहिए, दैट इज देयर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज परसिवरेंस होती है, लगे रहो मुन्ना भाई, कि आप कोई अगर लक्ष्य आपने चुन लिया तब तक लगे रहो जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो।
So today I am going to give you success mantra. Now I am the concluding part. So success mantra है, you may be the astic, you may be nastic, but from today you will be yastic. Yastic मतलब YESTIK. आज से आप केवल यही बोलेंगे yes I can. कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं होती जो आप अगर चाहे तो प्राप्त नहीं कर सकते. This I have done myself. मेरी जिंदगी करीब 40 साल, काफी इसमें यात्राएं उबड़ खाबड़ रही, लेकिन सफलता जो अगर हाथ में लिया वो किया. सो यस आई कैन, ये आप करें. और इसके लिए हमने प्लस मेडिटेशन की बात करी है. आप सुबह शाम उठ के केवल अफर्मेटिव वर्ड अपने को बताएं. यस आई कैन डू, यस आई कैन डू, यस आई कैन डू, जैसे मैं ये कर सकता हूँ. जैसे हमारे प्रोजेक्ट के लोग हैं, हमारा कोई क्रॉसिंग है, ये क्यों नहीं हो सकती है. नाउ यू विल फाइंड द वे. आप उसमें लीवर्स ढूंढोगे कैसे कर सकते हो. Then ये आप चैंट करेंगे. और 7 लाइफ चेंजिंग टीचिंग जो गांधी जी मेरे को लगता है, 1 इज नॉन वायलेंस. वो आज कितनी परिपेक्ष है ये मेरे को पता नहीं है. देन यूज ऑफ खादी को हम यूज करें ताकि खादी बढ़े. ये बहुत अच्छी चीज है. हम कम से कम एक कमीज, हमने गेल में बोला था कि 1 शर्ट यू शुड हैव ऑफ खादी. हर आदमी एक खादी, चाहे साड़ी पहने, चाहे कुर्ता पहने, चाहे पैजामा पहने. टाइम कॉन्शियसनेस आपको होनी चाहिए. इनोवेशन, दांडी मार्च उन्होंने किया था, दैट इज आफ्टर इनोवेशन. उन्होंने दांडी मार्च किया हुआ, नमक का आंदोलन तोड़ दिया, कुछ बोलते हथौड़ा चलाया उन्होंने. भाई ही हैज थॉट दैट, और उसके पीछे उनकी जनता चल पड़ी. और बहुत बड़ी चीज होती है जो एक लीडर में होनी चाहिए, दैट इज सैक्रिफाइस. ही इज हैविंग, देखिए आज भी हम तो ऑर्गेनाइजेशन से होके आए हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी हमको एक सैक्रिफाइसिंग लीडर की आवश्यकता है. वही ऑर्गेनाइजेशन में वो लीडरशिप को अप्रिशिएट लोग करते हैं जो अपने लिए कुछ नहीं करता लेकिन दूसरों के लिए करता है. सो दैट गांधी लीडरशिप एट द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द डे. सिंप्लिसिटी, ट्रुथ, डोंट स्टॉप टिल द गोल इज अचीव्ड, एंड कंटिन्यूअस लर्निंग. वो कितना पढ़ते थे, कितना लिखते थे, एवरीथिंग ही यूज्ड टू रीड, एवरीथिंग. आप किसी ने कोई किताब उनको भेंट करी, उसके बाद उसका कमेंट बना के भेज देते थे. सो ही यूज्ड टू कंटिन्यूअस लर्निंग. ये भी आज हम बोलते हैं. एंड इनर्जेटिक, और कितनी एनर्जी किसी भी बंदे को मिलते थे कहीं से कहीं तक. एंड लास्ट इज 11वीं जो है सैनिटेशन. जो स्वच्छता की बात उन्होंने कही, वो सैनिटेशन वो आज भी इतनी है. अपना टॉयलेट कम से कम हम लोग खुद तो साफ करें. हम जो बाहर वाला आता है उससे साफ करवाते हैं. व्हाई वी कैन नॉट क्लीन आवर टॉयलेट? वी शुड डू दैट. तो जब हम घर करेंगे, हमारे बच्चे उसको देखेंगे. कल जो आज हमारे पीएम ने एक मुहिम उठाई थी, आज भी देखिए, आज भी सैनिटेशन वहीं के वहीं है. अभी एक रिपोर्ट आई है सीएजी की, उसमें टॉयलेट वहीं के वहीं है. बिकॉज पीपल आर, दैट वाई द पॉजिटिव थिंकिंग इज रिक्वायर्ड. कि भाई सोचो, कुछ अच्छा सोचो यार, थिंक. और कुछ कार्डिनल अपने रूल बना लो. तो नाउ इट्स ए टाइम ऑफ मेंटल सैनिटेशन. टेक द नेगेटिव थॉट एंड पॉजिटिव, एंड दिस इज दिस. सो आई एंड विथ सब जितने भी पार्टिसिपेंट है भैया सुने, रीड 1 आवर, पढ़ो 1 घंटा जरूर अपने डेवलपमेंट के लिए लगाएं. अच्छी किताबें पढ़ें, गांधी जी की किताबें पढ़े, विवेकानंद की किताबें पढ़े, लीडरशिप की किताब पढ़े, ऑर्गेनाइजेशन की किताब पढ़ें. एंड टीचर एंड स्टूडेंट शुड डेली डिसेमिनेट 1 स्टोरी ऑन गांधी जी एंड शास्त्री जी. ये हम एक मुहिम बनाएं. हम फाउंडेशन की ओर से तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जितने लोग भी जो हमारे साथ जुड़े हैं वो ये मुहिम बनाएं कि गांधी जी और शास्त्री जी का एक विचार कम से कम हर हफ्ते उस कॉलेज में, या जैसे साई जी के कॉलेज है, करीब 20 सेंटर हैं, वहां पर अगर आप एक भी थॉट अगर बोले भाई इस हफ्ते का गांधी का थॉट ये है, एंड एवरीबॉडी शुड डिसाइड इट, वो उसके सबकॉन्शियस में कहीं जाएगा. एंड डूइंग इट यूनिवर्सिटी एट अच्छा, एक मैंने जो डॉक्टर आर्शो से बात करी थी, वी आर गोइंग टू डू 1 रिसर्च ऑन गांधी जी एंड पॉजिटिविटी विद डॉक्टर आर्शो हैज एग्रीड कि हाँ वो हमारी हेल्प करेंगे. तो होपफुली विद इन दिस ईयर, हम अगले 2 अक्टूबर 2021 का टारगेट हम ले रहे हैं कि हम एक बहुत अच्छी किताब लेके आएंगे, गांधी जी की स्टोरी, और उससे हमको पॉजिटिविटी क्या मिलती है. सो दैट इट विल गो अलॉन्ग विद डॉक्टर आर्शो. वी आर गोइंग टू डू दैट. एंड आप लोग प्लस अप्रोच फाउंडेशन को ज्वाइन करिए, plusapproach.co.in. आपको 490 न्यूज लेटर प्लस अप्रोच आएगा, वुड कंटेन स्टोरी ऑफ गांधी जी एंड शास्त्री जी. हम उसमें एक स्टोरी गांधी और शास्त्री जी की लगा देंगे, और नवंबर एडिशन हम लोग करेंगे इसके बारे में. इसके बाद अभी किसी ने, विनोद जी ने बात करी हनुमान जी की. हम लोग एक विनोद जी हनुमान जी के ऊपर भी सुंदरकांड और पॉजिटिविटी करना चाहते हैं. तो अगर कोई आदमी आपको मिले, अगर कोई अच्छा ज्ञाता मिले सुंदरकांड के ऊपर, बिकॉज हनुमान वाज हैविंग ट्रिमेंडस पोटेंशियल. बिल्कुल. तो उनको अपने पोटेंशियल का पता ही नहीं था और उसको जगाना पड़ता था.
So that we are going to do. Last, life is a marathon. जिंदगी एक मैराथन है, जो ये मैंने लिखा है, ये विवेकानंद को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके लिखा है। जिंदगी एक मैराथन है, यहाँ रुकना और थकना मना है। उठो, चलो, दौड़ो, गिरो, चाहे फिर उठो और रेंगो, अब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। With this, I thank you all for joining this. Join our foundation. थोड़ा सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करें, पॉजिटिविटी फैलाएं। केवल सकारात्मकता, आपसे हम कुछ पैसे नहीं ले रहे हैं। वी आर नॉट टेकिंग इवन ए सिंगल मनी फ्रॉम यू। केवल एक सकारात्मक विचार को अपने अंदर लेके आए और दूसरों तक फैलाएं। और लास्टली, थैंक यू, टेक केयर, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। कोरोना बड़ी खराब बीमारी है, इससे रोकथाम का एक ही इलाज है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। थैंक यू। हाँ जी, एक अपील छोटी सी और कर दीजिए आप। हाँ, चूंकि आपने गांधी जी की उसकी मितव्यता की जिक्र किया था कि पानी को कैसे वो, जब नेहरू जी हाथ धुला रहे थे तो उन्होंने कहा गंगा जमुना सबके लिए है। हाँ, पानी को लेकर के जो मैं एक बार मैंने आपके कार्यक्रम में बोल चुका हूँ, हाँ, अक्सर हम लोग ग्लास में पानी पी के छोड़ देते हैं, बोतल में पानी पी के आधा छोड़ देते हैं। तो सारे लोगों से मेरी अपील ये है, और आपके माध्यम से आप करें कि कम से कम ये नियम बना लें, कहीं भी पानी पिएंगे उतना ही लेंगे जितना पिए, और पूरा पिए। और बोतल जो पानी की पार्टियों में, शादियों में, दावतों में जाते हैं, वो बोतल एक घूंट पी के न छोड़े, वो पूरी बोतल अपने साथ रखें और पूरा पानी पिए। तो कम से कम जो है बहुत पानी की बचत होगी। ये एक अपील जो है। वेरी गुड। इसमें हमारे प्रोडक्ट है फाउंडेशन का, उसका नाम है श्री, SREE, सेव रिसोर्सेज, एनर्जी एंड एनवायरमेंट। आपने उससे बिजली के लिए बोला है। अगर आपकी बिजली चली है, 1 यूनिट अगर आप बचाते हैं, जितने इलेक्ट्रिफाइड जगह है देश की, करीब 12,000 करोड़ रुपया बचता है। और सबसे बड़ी चीज ये है, देखिए मैं अभी 2 मिनट और लेता हूँ। जापान में एक बार सुनामी आई थी, तो सुनामी आई तो एक इंडियन आदमी वहां खाना खाने गया था। तो उसने खाना जब खाया, उसने प्लेट में खाना छोड़ दिया। प्लेट में जब उसने खाना छोड़ दिया तो लोगों ने, उसने बोला वो भैया बिल लेके आओ। वो बिल लेके नहीं आया। उसने कहा आई विल नॉट ब्रिंग। उसने कहा व्हाई? बोला नो यू कैन नॉट वेस्ट इट। तो उसने वहां से पुलिस को बुला लिया, पुलिस आ गई। पुलिस से को उसने बोला कि भाई आई एम रेडी टू पे द मनी, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू? ही सेड सर यू कैन नॉट वेस्ट इट, इट इज अ नेशनल रिसोर्स। तो जो चीज पैदा हो रही है उसको अगर हम बचाएंगे तो उतनी कहीं यूज हो सकती है। इसलिए हम बिजली बचाएं, खाना बचाएं। हमारा श्री जो मॉड्यूल है हम उसको वेबसाइट में डाल देंगे, आप उसको डाउनलोड करिए और सब लोगों को बताइए कि भैया एनर्जी बचाओ, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, पानी बचाओ, खाना बचाओ, और सबसे बड़ी चीज समय बचाओ। समय बहुत कीमती है। समय इज कॉस्टलियर देन योर मनी। एक एक मिनट हमारा कीमती है, उसको एक सही काम में लगाएं। अगर आप बहुत बोर हो रहे हैं, किसी की आलोचना मत करें। सकारात्मक, ये नकारात्मकता है। सकारात्मकता है, आप विवेचना कर सकते हैं, लेकिन उतनी ही करें जितनी आवश्यक है। अच्छी किताब पढ़ें, 1 घंटा अपने को डेवलपमेंट के लिए लगाइए। उसके साथ ही है मास्क पहने। आजकल कोरोना टाइम है, अभी 1 साल और चलेगा। एंड सोशल डिस्टेंसिंग, और खुश रहें। थिंक पॉजिटिव, कीप और स्माइलिंग। विद दिस ऑल द पैनलिस्ट, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले महीने, हम लोग एक सीरीज करेंगे, कब करेंगे, एंड वी विल अगेन मीट आफ्टर 1.5 month. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल द पैनलिस्ट, ऑल द पार्टिसिपेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।